امریکہ دنیا کی سب سے مقروض معیشت ہے. طلب اور رسد اور منڈی جو ہے وہ طے کرے گی کیا چیز بننی ہے اور کیا نہیں بننی. کون سی ریاستوں نے اس پہ قابو پایا؟ ناظرین، آج میں ایک عمران یعقوب صاحب کا جو چینل ہے واقفان حال، اس پہ میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ میں خود یہ بڑا شوق سے دیکھتا ہوں. ان کو اندر کی خبر ہوتی ہے ان کے پاس. آپ بھی آگاہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کے لیے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں آج مجھے انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ میں معیشت کے حوالے سے اور جو کورونا کے بعد کی دنیا بن رہی ہے ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی، اور ہمیں دنیا کی بات اس لیے کرنی پڑے گی کہ آج دنیا کی معیشت فی الحال تادم گفتگو ایک معیشت ہے دنیا کی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مگر میں سادہ زبان میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ بہت خوفناک معاشی بحران آ چکا ہے. اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے ملک میں تو اس کی بحث نہیں ہو رہی. میں بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو سکھاؤں گا. ایسی کیفیت 1930 میں پیدا ہوئی تھی، اور 1930 میں میں بلکہ بہت سی ٹرمینالوجی کو میں استعمال نہیں کروں گا بلکہ اس کے مطالب اور مفاہیم پہ بات کروں گا کہ کیا گیا. یہ کیا گیا تھا، ایسے ہی دنیا بنی، ایسے ہی ساری معیشتیں برباد ہو گئی. تو انہوں نے ایک لارڈ کینز نامی ایک اکانومسٹ تھا، تو انہوں نے کینشنزم کیا، جس کا اب ہمیں یہ کہہ بھی رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کہ ہم بھی کریں. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حکومت نے بہت سے منصوبے شروع کر دیے امریکہ میں. ہوور ڈیم اس وقت بنا کہ جی یہاں آپ منصوبے شروع کر دیں، لوگوں کو روزگار ملے گا. تو لیکن اس سے کام نہیں حل ہوا تھا، اور خود کینز نے مانا تھا کہ یہ نہیں ہوا. اور پھر جب یہ بحران ختم ہوا، جب جنگ لگی تھی، دوسری عالمی جنگ لگی، تو اس کے بعد یہ بحران ختم ہوا. وہ کیسے کہ لوگوں کو فوج میں نوکریاں ملی، اس کے بعد انڈسٹری جو فوج کا سامان بنا، یہ جو اسلحہ وغیرہ، اس کی انڈسٹری نے فلرش کیا، تو ریسیشن جا کے ختم ہوا. اور پھر مارشل پلان بھی تھا جو $60 ارب سے امریکہ نے شروع کیا. یورپ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، تو پھر ایک دفعہ سے معاشی ابھار آیا. اب کیا کیا جائے؟ تب ریاستوں کے پاس بہت سے پیسے تھے، اور ریاستیں قرضوں میں اس طرح نہیں جکڑی ہوئی تھی جس طرح آج جکڑی ہوئی ہیں. امریکہ دنیا کی سب سے مقروض معیشت ہے. تو وہاں پہ اب ایک نئی تھیوری آ رہی ہے. اچھا، اس کا نام تو ہے MMT، ماڈرن مانیٹری تھیوری. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بھی وہی ہے لگ بھگ کہ جی نوٹ چھاپیں، اور جو ہے نوٹ چھاپ کے لوگوں کو جو ہے دیں، پیسے دیں، اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نوٹ ایک وقت تک آپ چھاپ سکتے ہیں. اگر آپ نوٹ چھاپتے چلے جائیں اور پیداوار میں اضافہ نہ ہو تو پھر تو اس طرح ہوگا جیسے آج کل وینزویلا میں ہو رہا ہے کہ کوکا کولا کی بوتل آپ کو جو ہے وہ 1 ملین میں لینی پڑتی ہے، تو اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ اب پاکستان میں حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سپینڈنگ شروع کر دیجیے. ہم کیسے سپینڈنگ کریں؟ ہم نوٹ چھاپیں گے تو ایک بربادی آ جائے گی. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کورونا وائرس نے جو سب سے بڑی حقیقت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن جس کو اب کوئی شک شبہ کے بغیر آشکار کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مفروضہ ختم ہو گیا ہے کہ طلب اور رسد اور منڈی جو ہے وہ طے کرے گی کیا چیز بننی ہے اور کیا نہیں بننی. اب امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں ایک صحت کے پر ایک آدمی پر امریکہ کی حکومت $11,700 خرچ کرتی، اور وہاں پہ ادم مچا ہوا ہے. وہاں پہ ماسک نہیں ہے. 4.5 لاکھ جو کپڑے ہیں پروٹیکٹیو، جو پروٹیکشن کے لیے، تحفظ کے لیے میڈیکل ورکرز یا ڈاکٹرز پہنتے ہیں، 4.5 لاکھ ویتنام نے دیے ہیں ان کو. اور وہ گلی گلی میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں وینٹیلیٹر. تو اس $11,700 آ کر وہ کہاں خرچ ہوتے رہے آج تک، جو امریکہ میں آج اتنے بندے مرے ہیں. امریکہ کے پہلو میں کیوبا ہے جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. وہاں پہ 1 کروڑ میں تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے 20 کے قریب ڈیتھس ہوئی. امریکہ میں 500 سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور کیوبا جو ہے وہ $971 پر ہیڈ خرچ کرتا ہے کسی ایک کی صحت پر. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پرائیویٹ کاروبار نہیں ہے، صحت ریاست کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ دوسرا فرق کیا ہے؟ پریونٹیو میڈیسن. پریونٹیو میڈیسن کیا کہ بیماری کو آنے سے پہلے روکو. وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے ڈاکٹر جو ہیں، جو ان کی کمیونٹی اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ہر گھروں کے بیچ ایک ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر باری باری گھروں میں وزٹ کرتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے لوگ رہتے کیسے ہیں، وہ کیا حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور وہ بیماری کو آنے سے پہلے روکتے ہیں. اور جو کہ بہت اور دیکھیں وہاں جو اوسط توقع حیات ہے، جسے ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ کہتے ہیں، وہ امریکہ سے تقریباً 1 سال زیادہ ہے.
वो तकरीबन 79.74 है वहां पे, जबकि यहाँ ये 78 पॉइंट समथिंग अमेरिका का, इससे बढ़ के चाइल्ड मोर्टेलिटी में, बच्चों की हलाकत में जो है वो उसके फिगर बेहतर है। अच्छा, इसकी उन्होंने एक दलील और दी। उन्होंने कहा दलील ये है कि अमेरिका में तो बहुत लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं वहां पे, तो वो बाहर से वायरस लेके आते हैं, इसलिए अब भाई क्यूबा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सियाहत है, वहां 4.7 मिलियन यानी 47 लाख लोग 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में, उनकी तकरीबन आधी आबादी के करीब लोग विजिट करते हैं साल में, तो वो क्यों नहीं बीमार हुए? अच्छा, अब रहा सवाल कि अब आइंदा इस मैशत से और इस अजाब से कैसे निकला जाए। अब फिर वो यही काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? जब 2008 का रिसेशन आया था तो उन्होंने बहुत सी रकम प्राइवेट कारोबारों को दे दी, आपकी रकम, मेरी रकम, जिस पे यूरोप और अमेरिका में बहुत शोर मचा था कि भाई ये हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, आप प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, लेमन ब्रदर को दे रहे हैं, आप जो है वो इनको दे रहे हैं। ये अगर कारोबार नहीं चला सके, और सरमायादारी का ये असूल है कि अगर आपका कारोबार नहीं चला, बंद हो गया, तो ये खत्म होगी बात। तो ये क्या हुआ कि आप आवाम के लिए जो है वो तो आपने सरमायादारी रखी हुई है, और जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए आपने सोशलिज्म रखा हुआ है, उनको आप रियासत की तरफ से पैसे दे रहे हैं। तो ये अब बहसें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। और ये जो रिसेशन है, ये इसने चैलेंज कर दिया है। इवन हेनरी किसिंजर जैसे आदमी ने कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फारग हो चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? प्राइवेटाइजेशन करनी है आपने जो है, जो ये जिसे आप वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, ये वाशिंगटन कंसेंसस क्या था कि ये हुकूमत का कोई काम नहीं है आपकी वेलफेयर करना, हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है स्कूल बनाने की, हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है, ये तो प्राइवेट होगा। तो अगर प्राइवेट होगा तो फिर यही ऐसे ही होगा जैसे आज जो पूरी दुनिया में उधम मचा हुआ है। अब कौन सी रियासतों ने इस पर काबू पाया? तो आप देखते हैं कि उनमें एक पैटर्न सब में, जिन्होंने कम से कम नुकसान हुआ जिनको कोरोना के बायस, उन रियासतों में हमने देखा है कि हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सेक्टर में था। चाइना में गवर्नमेंट सेक्टर में था, उसने काबू पा लिया। कोरिया में गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा था उनका सेहत, उन्होंने काबू पा लिया। क्यूबा ने काबू पा लिया, क्योंकि क्यूबा का सारा हेल्थ जो है वो रियासत और सरकार देखती है। तो वहां और बर्बादी कहां हुई? मतलब मैं अब आपको लाहौर की जहां मैं बैठा हूं, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये मैं एक थोड़ी पुरानी फिगर दे रहा हूं, शायद इसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ गई हो, लेकिन मैंने कुछ साल, एक साल डेढ़ पहले मैंने चेक किया था कि लाहौर में तबके उमरा के जो अस्पताल हैं, मैं इसको दोबारा भी चेक करूंगा, लेकिन मैं आप भी देखिएगा, जो जहां बेशुमार पैसा दे के आप अपना इलाज करवाते हैं, वहां भी टोटल 100-150 के करीब बेड्स हैं आपके। यानी अगर ये तबकात, जो हाकम तबकात हैं, जो मालदार लोग हैं, अगर ये भी बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई वबा फूट पड़े, तो इनके लिए तो अपने लिए अस्पताल कोई नहीं है यहां पे, तो हमें क्या देंगे? मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था, बच्चे बैठे थे कॉलेज के, तो एक बच्चे ने उठ के सवाल किया मेरे साथ, उस वक्त पंजाब के मिनिस्टर थे, क्या नाम है, राणा सनाउल्लाह साहब, वो भी उस शो में बैठे थे। एक बच्चे ने अजीब गरीब सवाल किया, उसने कहा कि जनाब आप बात करते हैं, आप अपने लिए तो यहां अस्पताल बनवा नहीं सके, आप अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान के सरकारी पैसे से जहाज में बैठते हैं और वहां जाकर सरकारी लंदन में इलाज करवाते हैं, हमें आपने क्या देना है? तो ये सारे पैराडाइम बदलेंगे। अब इसमें दूसरी एक और जो एक सबसे बड़ी एक नेगेटिविटी है, वो ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिल्कुल फारग हो गई हैं, उनके कोई मंशूर नहीं है, आज की जरूरतों से उनके मंशूर हमांग नहीं है। खुद उनके जो लीडर साहिबान हैं वो रऊसा बन चुके हैं, अमीर कबीर लोग हैं, उनके ये मसाइल ही नहीं है जो मेरे और आपके मसले हैं, या मेरे बच्चे का मसला है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो अब लिमिटेड कंपनी ज्यादा बन गई हैं और कारोबारी इदारे लगते हैं, ये कैसे आपकी मेरी, इसका मतलब ये है कि वक्त का तकाजा है कि जैसे अमेरिका में एक तीसरी पार्टी की जरूरत है, जिस तरीके से वारदात करके बर्नी सैंडर जो कह रहा था कि हेल्थ को फ्री करो, एजुकेशन को फ्री करो, तालिब इल्मों का कर्जा माफ करो, उसको उन्होंने रिग करके, सिस्टम को रिग करके उसको उन्होंने इलेक्शन की रेस से बाहर निकाल दिया। और पिछली दफा भी किया था, इस दफा भी कर दिया। अब दो बंदे, एक ही तबके के दो बंदे हैं, एक जैसा उनका, वो उनमें से एक आदमी आ जाएगा, जो बाइडेन आ जाएगा या ट्रंप रहेगा। इन दोनों सूरतों में हम ये देखते हैं कि अवाम की हालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अवामी सतह पर एहतजाज शुरू हो चुका है। यूरोप में हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन बड़ी मजबूत है, वहां पे वर्कर्स ने ऑलरेडी वहां अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी हैं कोरोना के बायस। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा सिस्टम है हैवीली रिग्ड है, हमें हमारे हकूक दो। आइन में जो हमारे हकूक, अब पाकिस्तान के आइन में इस मुल्क के अवाम के हकूक हैं, जिसमें सेहत देना रियासत की जिम्मेदारी है, मुलाजमत देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें ये लिखा हुआ है। तो जब कोई वजीर आके हमें ये कहता है कि हमें नौकरी देना उनका काम नहीं है, तो वो काम छोड़ दें,
क्योंकि उनको नौकरी आपने और मैंने दे रखी है, उनकी तनख्वाह, उनकी बिजली का बिल, वजीर मसूफ तमाम हुक्मरानों की ये सारे जो बिल हैं ये आप देते हैं। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी के पैसे आप देते हैं, ये तमाम सरकारी जो मुलाजमीन हैं इनके पैसे आप देते हैं। तो ये जब हमें आके कहते हैं कि हमें आपको नौकरी देना आपका काम नहीं है, तो इनको हर तारीख के कूड़ेदान में ना फेंके तो हम कहां फेंके, क्या करें इनका, अचार डालें। जब 70 से 80% रियासत को चलाने के अखराजात आप और मैं देते हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जी हमने नहीं आपको देना, ये फैसिलिटीज नहीं देनी, जबकि आइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर ये आइन में लिखा हुआ है तो ये तुम्हारी जो वारदात, ये तो तुम्हारी हुकूमत ही गैर आइनी हो जाती है। हाँ, वहां इन्होंने क्या वारदात की है, जो पहली 40 शिकें हैं जिसमें आपके और मेरे हकूक की बात आइन में दर्ज है, उसके नीचे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिख के उसको सस्पेंड कर दिए। गोया हमारे आइन का वो हिस्सा उस मुअत्तल है जिसमें मेरे और आपके हकूक को इंश्योर किया गया है, और जो है इनके जो हकूक हैं कि जो वोट लेके आएंगे, हुक्मरानी करेंगे, इनको मुफ्त टिकट मिलेंगे, इनको मुफ्त इलाज मिलेगा, इनको मुफ्त घर मिलेगा, ये सारा मैं और आप देते हैं। ये आपकी मेरी तनख्वाह, मजदूरी, इसमें से पैसे कट के जाते हैं। और जो आपका 70 विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? विद होल्डिंग टैक्स वो होता है जो आपसे ले लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब आपने चेक बुक ली, उस पर विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है, आपने पैसे अपने बैंक से निकलवाए, उस पर विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है। तो 70 डॉक्टर कलाम के मुताबिक 70 से 80% जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो तो हमारी जेबों से करते हैं। हमारी जेबों से रेवेन्यू लेके जब ऊपर जाते हो तो कहते हैं आपको से जो है वो पानी आप जो है वो नेस्ले का पी लें, इलाज जो है वो आप किसी 7 स्टार अस्पताल से करवा लें, और बच्चा जो है किसी 7 स्टार स्कूल में पढ़ा लें। तो ये क्या है? ये जो हट्टियां और दुकानें लगाई हैं उनको करने दें, करें वो जो मर्जी करें। मुझे आइन के मुताबिक उसी मियार का स्कूल चाहिए अपने बच्चे के लिए, उसी मियार की हेल्थ चाहिए। और कोरोना के बाद अगर सियासत होगी और अगर करेगा कोई या अवाम उसकी तरफ अगर रुजू करेंगे, बाकी ये तो खत्म है, ये तो ठीक है। ये आएंगे 2-4 करोड़ लगाओ जी, इलेक्शन जीतो, ऊपर जाके शुगर के जो माफी है उनके लिए काम करो, बिजली की माफी के लिए काम करो। अब आप देखें 4800 अरब रुपए की इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट कर दी पिछले 10-15 साल में। कैपेसिटी पेमेंट क्या थी? ये आपने बिजली के बिल में 4800 अरब रुपया जो है वो बिजली ना बनने का दिया है। अब ये सारे बिजली बनाने वाले कह रहे हैं जी हम आप हमसे 100-150 अरब ले लें। ये काम नहीं चलेगा। अब मेरे ख्याल में कोरोना के बाद जो दुनिया तुलू होगी, इसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी बनेगी, नए लीडर भी सामने आएंगे, और पुराने लीडर जो है उन्हें तारीख और इस मनस्य शऊद से हटना पड़ेगा। ये मेरी कंट्रीब्यूशन था। थैंक यू इमरान याकूब साहब। उम्मीद है आप ये किसी काबिल होगा। खुदा हाफिज।